Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We were doing chapter 6 and in the last lecture we were done with that chapter, okay, which was People's Resistance Against British before 1857. And today I have brought for you the bonus MCQs of this chapter. But before that, please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. Let's get started with the MCQs. So your first question is, which one of the following movements did not take place in the Northeast India? You have to tell इनमें से कौन से movements हैं या कौन से uprisings और revolts हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं हुए बल्कि मेनलैंड इंडिया में हुआ है. ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं हुआ, मेनलैंड इंडिया में हुआ है. योर ऑप्शंस आर खासी अपराइजिंग, भील अपराइजिंग, नागा मूवमेंट एंड कुकी रिवोल्ट. So pause the video and try to recall the answer. Okay. So for this question, अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो खासी नाम से पता चल रहा है because we have खासी and गारो जयंत हिल्स if you remember, right? in the north east, तो ये तो नहीं होगा, right? then नागा भी नाम से पता चल रहा है. अच्छा, नागा मूवमेंट did not take place in Nagaland. You remember or not? I told you, right? It took place in Manipur, but not in Nagaland. And Kuki revolt, this too took place in the northeast India only. So what option you are left with? It is Bhil uprising. So the right answer is Bhil uprising. Okay. For this question, your right answer is Bhil uprising. Okay, and where did the Kuki revolt took place? It took place in Manipur. Both Naga movement and Kuki movement, they took place in Manipur. Khasi in the Garo Khasi Jaintia hills, and Bhil, it took place in the Western Ghats region. Okay, let's move ahead. Your next question is, consider the following statements regarding the Wahhabi movement. Your first statement is, it was founded by Muhammad Awaz. And the second statement is, the movement helped in spreading anti-British sentiments. So you have to identify the incorrect statement here, okay? Which among the following statement or statements is incorrect? So focus the word incorrect. So let's take these statements one by one. Okay, so your first statement, that is, it was founded by Muhammad Awaz, is completely wrong. Because it was founded by Sir Syed Ahmad of Rai Bareilly. ठीक है, ये मोहम्मद एवज के भी अंडर में एक, आई वोंट से अंडर में, ही एक्चुअली वॉज द पर्सन हु फाइल्ड द पिटिशन अगेंस्ट द police tax in Bareilly. Okay, but here Sir Syed Ahmad is the right person. Okay, इन्होंने ही फाउंडेशन की थी वहाबी मूवमेंट की. Okay, next movement, that it helped in spreading anti-British sentiments, it is very much correct. So your right answer would be A only. Okay, you had to tell the incorrect statement, so your right answer is A only. Let's move ahead. Your third question is, match the following movements with their leaders. And you have your movements as Pagalpanthis, Ahom revolt, Kuka revolt, Khond uprising, and your leaders as Gomdhar Konwar, Karam Shah, Chakra Bisoi एंड भगत जवाहर मल. तो आपको बताना है ये जो मूवमेंट्स हैं इनके लीडर्स कौन कौन है, मैच करना है आपको. सो लेट्स बिगिन. सो पागलपंथीज के लीडर थे आपके करम शाह, अहोम रिवोल्ट के लीडर थे गोमधर कोनवार, फॉर कुका रिवोल्ट इट वॉज भगत जवाहर मल, एंड फॉर खोंड अपराइजिंग इट वॉज चक्रा बिसोई. ओके, सो योर आंसर वुड बी, इफ यू मैच इट, ए यू हैव योर सेकेंड एज द ऑप्शन. ठीक है, ये रहा. तो और कहीं आपको सेकंड दिख नहीं रहा है तो यही आंसर हो जाएगा. एक बार फिर भी देख लेते हैं आगे कंटिन्यूएशन में. B1, C4 एंड D थर्ड. ओके, सो दिस इज योर राइट ऑप्शन. अच्छा, देख लेते हैं एक बार पागलपंथी रिवोल्ट एंड ऑल द रिवोल्ट्स, व्हेन डिड दे टेक प्लेस एंड वेयर डिड दे टेक प्लेस. सो योर पागलपंथीज, इट हैपेंड इन द बंगाल रीजन. ठीक है, एंड व्हेन इट हैपेंड 1825 में ये स्टार्ट हुआ था. ओके, देन अहोम तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, इट टुक प्लेस इन दी असम रीजन. ठीक है, देन कुका इज इन दी पंजाब रीजन. ओके, एंड खोंड अपराइजिंग, इट टुक प्लेस इन आंध्र प्रदेश.
ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, प्लीज मैनेज, ठीक है। ओके, सो दिस पागलपंथीज इट टुक प्लेस 1825, देन योर अहोम इट हैपेंड, असम वाला 1828, ठीक है। कूका हुआ है आपका इन द ईयर 1840, एंड दैट इज खोंड अपराइजिंग, ये हुआ है आपका इन द ईयर 1837, ठीक है। ऑल दीज मूवमेंट्स दे टुक प्लेस बिफोर 1857. Okay, one more thing, I'm really sorry today I might be sounding a little dull because I have got a sore throat, so please manage with that. Okay, next question is, which among the following tribal revolts took place before the revolt of 1857? आपको बताना है 1857 के रिवोल्ट से पहले इनमें से कौन से ट्राइबल मूवमेंट है जो हुआ, ठीक है। सो ऑप्शंस आर ताना भगत मूवमेंट, खोंडा डोरा अपराइजिंग, revolt of Jungle Mahal, and Naikada movement. So in this question as well, what you should do, you should eliminate. कैसे eliminate करेंगे? For that you should have a general idea of the revolts which took place before and after 1857. You don't have to mug up the years, okay? There are some important revolts for which you have to remember the year as well, okay? But still not for everyone. तो यहाँ पे you must have the idea that 1857 से पहले and 1857 के बाद. So here your right answer is revolt of Jungle Mahal. Now I have deliberately written revolt of Jungle Mahal and its another name is Chuar uprising. याद है ना सबको? Yes, Chuar uprising. But Chuar is considered a derogatory word, इसलिए इसका दूसरा नाम historians ने क्या रखा? Revolt of Jungle Mahal. ठीक है। अब अगर ताना भगत मूवमेंट की बात करें तो ये आपका, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि ये कब हुआ है रिवोल्ट ऑफ जंगल महल. दिस हैपेंड इन द ईयर 1766, वे बैक, ठीक है, वेयर इन द बंगाल रीजन. ओके, देन दिस ताना भगत मूवमेंट ये आपका हुआ है छोटा नागपुर में, दैट इज झारखंड रीजन में, ठीक है. एंड देन योर खोंडा डोरा अपराइजिंग, दिस हैपेंड इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में, ठीक है. एंड देन नायकाड़ा मूवमेंट इट हैपेंड इन द गुजरात एंड द एमपी रीजन, ठीक है. और ईयर्स देख लेते हैं. ताना भगत मूवमेंट का जो ईयर है इट इज़ योर 1914, तो सीधा 24th सेंचुरी में, ठीक है. अच्छा ये रिलेट कीजिए ज़रा, कौन से वर्ल्ड वॉर से रिलेट हो रहा है ये? ऑब्वियसली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. देन ये जो आपका खोंडा डोरा है ये हुआ है इन द ईयर 1900 में, ठीक है. चुआर मैंने आपको बता दिया. एंड नायकाड़ा मूवमेंट इट टुक प्लेस 1860s में. ओके, लेट्स मूव अहेड. Next is your, which of the following statement or statements is or are correct regarding the Mopla rebellion? So your statements are, first one is the rebellion took place in Tamil Nadu. Second, the second Mopla rebellion was opposed by the Congress and the Khilafat supporters. So let's have a look at the statements. Okay? First statement is completely wrong. Why? Because this did not take place in Tamil Nadu. Instead, it took place in Malabar region. Okay, और Malabar exactly क्या मतलब होगा? That is in the Kerala. Which state it corresponds to? Kerala. Okay, so this statement is wrong, but you have to identify the correct statement. So focus. Now second Mopla rebellion was opposed by the Congress. अच्छा, second Mopla rebellion हुआ कब? It took place in the year 1921. So was it opposed by the Congress and the Khilafat supporters? No. Okay. So दोनों ही statements आपकी गलत हो गई. They were in fact supported. Initial में कांग्रेस का और खिलाफत supporters का support मिला था मोपला rebellion को, but हाँ later on कांग्रेस ने withdraw कर लिया था. But yeah, initially they were definitely supported. Oppose तो बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है. So for this question your correct answer option would be none. That is, both these statements are wrong and none of them is correct. Okay, let's move ahead. So sixth question is, Pahadiyas uprising, Munda uprising and coal mutiny took place in the region of, you have to tell ये जो तीनों uprisings लिखे हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं. Your options are Jharkhand, Bengal, Assam and Tamil Nadu. Okay, so all these uprisings they took place in the Jharkhand region, ठीक है. So your right answer is Jharkhand region. Okay, let's move ahead.
देन हु वर द फरेजीज? सो यू हैव टू टेल फरेजीज कौन थे. ऑप्शंस आर फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयत अल्लाह, followers of Sir Syed Ahmed, followers of Wahhabi movement, and followers of Abdul Wahab. Very interesting question, you know. इसको एलिमिनेट करना बहुत इजी है इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को, बिकॉज ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है. जो सबसे अलग है वो यही है, फर्स्ट वन, दैट इज फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयत अल्लाह. सो या फरेजीज वर दी फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयत अल्लाह. नाउ सर सैयद अहमद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट ये वहाबी मूवमेंट के फाउंडर थे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, वहाबी मूवमेंट भी एलिमिनेट हो गया. और अब्दुल वहाब कैसे एलिमिनेट होंगे? ऐसे एलिमिनेट होंगे दैट सर सैयद अहमद खान वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब. तो ये तीनों ही ऑप्शन जो बी सी डी आपके एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो एलिमिनेट करना बहुत ईजी था इस क्वेश्चन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स रेबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यू टू द कर्बिंग ऑफ द ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस. आपको पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी ट्राइब थी जिन्होंने इसलिए रेबेल किया कि उनकी जो ह्यूमन सेक्रीफाइस की प्रैक्टिस थी या ट्रेडिशन था उसको ब्रिटिश ने बैन कर दिया या फिर उसको कर्ब कर दिया. योर ऑप्शंस आर गोंड, सिंघपोस, खोंड एंड चेंचूस. ओके, सो फॉर दिस योर राइट आंसर इज खोंड. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज ये जो रेबेलियन हुआ है और इसका जो कॉज है ये थोड़ा यूनिक कॉज है. ठीक है. नाउ गोंड रेबेलियन किस लिए हुआ? इट हैपेंड टू ब्रिंग ऑल द गोंड्स टुगेदर एंड एस्टेब्लिश देयर रिलीजन. ठीक है. जो बिलीव करते थे गोंड रिलीजन में, उनको एक साथ लेके आना. ठीक है. ओके, देन दिस सिंघपोस, ये बेसिकली आपका सिर्फ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हुआ, एलियन रूल के अगेंस्ट में हुआ. खोंड हमने देख लिया है. और खोंड अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस, जो इसके दूसरे रीजन थे वो था ऑपरेशन एंड द हाई टैक्सेस. ठीक है. चेंचूस आपका ये फॉरेस्ट सत्याग्रह था. ठीक है. अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए और अपने जो फॉरेस्ट राइट्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए. ओके ओके, चलिए. अच्छा, आप प्लीज़ ये जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहे हैं या जो भी मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, whatever information I'm not telling you, you have to revise that. Okay, like the year, the leaders, the place, okay, everything, because we have already discussed everything. ठीक है. चलिए. Next question is Sidhu and Kanu led the revolt of. Your options are Santhals, Sannyasi, Moa Marias and the Bastar. आपको बताना है सीधू और कानू इनमें से कौन से रिवोल्ट के लीडर्स थे. सो your right answer is the संथल्स. ठीक है. नाउ बाकी की देख लेते हैं. सन्यासी जो है ये हुआ है आपका मजनूम, या फिर आप इसको मजनू सिंह भी कहते हैं. ठीक है. इसके लीडर ये रहे हैं, प्लस एक चिराग अली भी थे, एंड देयर वर मेनी अदर लीडर्स. ठीक है. नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन संथल्स के सीधू और कानू इम्पॉर्टेंट थे. ठीक है. दैट्स व्हाई आई गेव यू दिस क्वेश्चन. देन मोआ मारियाज जो हुआ है एक पर्सन है, किंग ऑफ दरांग. अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ पोटेंशियल क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट बस्तर एक्चुअली ये आपका छत्तीसगढ़ रीजन में रिवोल्ट हुआ था. एंड व्हेन वी रेड इट, तो बहुत ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ था दैट इट टुक प्लेस इन दी छत्तीसगढ़ रीजन. नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें भी एलिमिनेट करना बहुत इजी था क्योंकि संथल बहुत ही पॉपुलर रिवोल्ट है. ओके. एंड या सन्यासी इज ऑल्सो देयर, बट संथल्स जो है, ये जो रिवोल्ट हुआ था सीधू और कानू का, इट्स वेरी फेमस. एंड या ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज कुंडारा प्रोक्लेमेशन इज रिलेटेड टू विच रिवोल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. कुंडारा प्रोक्लेमेशन इनमें से किस रिवोल्ट से रिलेटेड है? सो फर्स्ट वन इज योर पार्ला की मेडी आउटब्रेक, पोलीगार्स रिवोल्ट, केरला वर्मा पचहसी राजा रिवोल्ट एंड दीवान वेलू थम्पीज रिवोल्ट. ओके, सो या योर राइट आंसर हियर इज दीवान वेलू थम्पीज रिवोल्ट. क्या हुआ था कुंडारा प्रोक्लेमेशन में? बेसिकली दीवान वेलू थम्पी ही गैदर्ड सम पीपल, अपने ग्रुप्स को गैदर किया उन्होंने,
एंड ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया दैट वी विल आउस्ट द ब्रिटिशर्स और द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम आवर लैंड, फ्रॉम आवर नेटिव सॉइल, हम इनको बाहर निकाल के फेंकेंगे, ठीक है। तो ये था कुंडारा प्रोक्लेमेशन। कुंडारा इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, ओके। और दीवान वेलुथम्पी का जो रिवोल्ट हुआ था, इट्स रिलेटेड टू दैट। नाउ पारला की मीडिया आउटब्रेक, ये आपका बेसिकली उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। पोलीगार आपका साउथ इंडिया में हुआ था, बट प्रोमिनेंट कहाँ था, ये आपका तमिलनाडु रीजन में। केरला वर्मा आपका नाम से पता चल रहा है। नाउ दीवान वेलुथम्पीज रिवोल्ट आप फाइंड आउट कीजिए कहाँ हुआ था, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज MCQs वेरी वेल, रिलेट एवरीथिंग, एंड या ट्राई टू मेक अ लिंक बिटवीन द टॉपिक्स। और क्रैम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईयर्स स्पेशली जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्रैम करना, डोंट क्रैम देम, रिलेट देम कि ये हुआ तो किसके पहले हुआ या किसके बाद हुआ। जैसे इस चैप्टर में हम 1857 रिवोल्ट की थ्रू आउट बात कर रहे थे, तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रिवोल्ट 1857 के पहले हुआ है या बाद में हुआ है, या 19th सेंचुरी में हुआ है या 20th सेंचुरी में हुआ है। इतना भी याद कर लेंगे, क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड, यू डोंट हैव टू क्रैम द ईयर्स। सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं, उनके लीडर्स याद कर लीजिए, सबके लीडर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइबल मूवमेंट जब आप करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का डिफ्रेंशिएट कीजिए कि मेनलैंड में कौन से हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट में कौन से हुए हैं, प्लस 1857 से पहले कौन से हुए हैं और 1857 के बाद में कौन से हुए हैं। और सिमिलरली जो हमने सिविल अपराइजिंग्स और पीजेंट अपराइजिंग्स देखे थे, उसमें आपको ये भी डिफ्रेंशिएट करना है अलॉन्ग विद द ईयर दैट व्हाट वर द रीजन्स, नॉर्थ में हुआ है, साउथ में हुआ है, वेस्ट में हुआ है, सेंट्रल में हुआ है या फिर ईस्ट में हुआ है, ठीक है। Okay, so thanks a lot for learning with me. Meet you in the next lecture and don't forget to like, share and subscribe. Okay.